अब मतलब +1+1+1. Superb. Thank you so much. Thank you. And with grabbing my opportunity, it's all yours. Our Starcast is all yours. But let's open the forum for media and let's get the questions moving. Sir, मैं अपना mic दे दूँ? Alright, we're going to get another mic. Yes. आप नीचे आ जाओ. अब इनकी बारी आएगी. आप नीचे. अब इनकी बारी है. सबीर सर जी जी. ट्रेलर बहुत अच्छा लगा सर. फर्स्ट ऑफ ऑल टाइटल भी बहुत कमाल का है. बट ट्रेलर देखकर मुझे ऐसा लग रहा है दैट इट इज अ रीमेक ऑफ NCA तेलुगु मूवी. जी. मिडिल क्लास अब है. सो व्हाट डिफरेंसेस यू हैव टेकन फ्रॉम दैट मूवी, और क्या डिफरेंट होगा, और क्या अभिमन्यु को देखकर लोग नानी को भूल जाएंगे या नहीं, ये थोड़ा बताइए. नानी याद आ जाएगी. नहीं, आपको ऐसा लग रहा है, आपको ऐसा लगना नहीं चाहिए, क्योंकि ये ऑफिशियल रीमेक है उनकी. और मैं सिर्फ इतना बोलूँगा, एक ही लाइन बोलूँगा कि जो ओरिजिनल प्रोड्यूसर हैं इस फिल्म के, दिल राजू, बहुत ही रिस्पेक्ट है. मतलब जब मुझे ये कहानी पसंद आई तो उन्होंने हमें ये फिल्म दी, और उन्होंने अभी रिसेंटली ये फिल्म देखी, उनको इतनी पसंद आई कि ही हैज़ गॉन आउट ऑफ हिज वे टू साइन अभिमन्यु फॉर हिज नेक्स्ट फिल्म. मैं इससे ज़्यादा और क्या बोलूँ. क्या बात है. अरे ये बात Hi Shilpa ma'am, this is Pari from Magnetic Media. First of all, belated happy birthday. 8 जून को आपका बर्थडे था, और जिस तरीके से शेडी और अभिमन्यु ने आपका बर्थडे सेलिब्रेट किया वो बहुत ही अमेजिंग था. मैं जानना चाहूँगी अभिमन्यु जी से कि आपकी जो इससे पहले भी हमने OTT पे मूवी देखी है मीनाक्षी चंद्रेशम, बहुत अच्छे लगे आप उसमें. तो मैं जानना चाहूँगी जैसे कि इसमें शिल्पा मैम है, काफ़ी ज़्यादा मतलब उनको एक्सपीरियंस है सब कुछ, और बहुत ज़्यादा लोग उन्हें दिल से प्यार करते हैं. तो आपने इस मूवी में उनसे कितना सीखा, क्योंकि उन्होंने इस मूवी में आपको ही सबसे ज़्यादा सिखाया, तो आपने उनसे पर्सनली कितना कुछ सीखा है? सीखना मैंने उनके फर्स्ट फ़ोन कॉल से किया. She's had so much experience, such a senior actor, and as soon as she came on board to the project and she heard that I'm doing the film, she called me up and she said, Abhimanyu, why don't you come over and let's go through the scenes together. And for someone to do that, to break the ice in such a way, I mean, the connection, I think for me started there. There was just so much respect कि she asked me to do the scenes with her. So I mean, then on, she's so energetic, और वो जैसे रूम में आती है आप जानते हो, like everyone starts smiling. इतना warmth है, and on set or off set भी throughout the lockdown we've really kept, I mean, she's really kept in touch, and ये भी बोलते हैं. and she's been extremely supportive on and off set both. So I've not just had the experience of working with Shilpa Shetty as a co-actor, but I found, I can't say friend, दोस्त तो नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा respect है, but I found someone that I would like to keep in my life forever. Hi everybody, welcome here in Delhi. कौन है, कौन बात है? Yeah, a very happy birthday Shilpa. My question is for all of you, like if you can tell us about your roles. Shilpa, you are acting as a supernatural. Your role is it's Superwoman. That I am in my real life. No. Well, whatever you've seen in the trailer definitely is part of the movie. But what you've seen is a figment of Adi's imagination. Adi इनका नाम है फिल्म में, और मेरा नाम अवनी है. And it's a beautiful story between a brother-in-law and a sister-in-law. So भाभी देवर की कहानी बहुत कम बनती है, and मुझे लगता है कि that is one of the reasons I also wanted to do this film, because I feel that is one relationship that hasn't been tapped other than Suraj Barjatia's films. And I really feel that cinema goers, there's a big dichotomy. 70% हमारी जो audiences है वो masses है, and 30% is maybe the classes. This film will cater to those 70%. So it is a very massy film. It's seeped with a lot
a lot of love, a lot of values, and that's really your take home. You know, there is normally भाभी देवर की कहानियों में आप देखते हैं बहुत ही प्यार है, एक दोस्ती होती है, इसमें दुश्मनी है, और वो दुश्मनी क्यों है वो आपको थिएटर में देखना पड़ेगा. एंड साबिर सर को मैं क्रेडिट दूंगी, जो ओरिजिनल फिल्म है आई डोंट थिंक हम में से किसी ने देखी होगी बिफोर वी स्टार्टेड फिल्मिंग. ही केम एंड ही नरेटेड अ स्क्रिप्ट टू मी व्हिच आई न्यू वाज यू नो फ्रॉम, इट वाज अ रीमेक, वी न्यू दैट, बट ही सेड देखो सेकंड हाफ बिल्कुल ही अलग है. तो ही हैज गिवन इट दैट साबिर ट्विस्ट, और वो आपको थिएटर में जाके देखना पड़ेगा कि हमने क्या किया है इस फिल्म के साथ. Abhimanyu, your role. So of course I'm in and as निकम्मा. मेरे कैरेक्टर का नाम आदि है, और निकम्मा मेरे लिए when I heard the title and so given the title, पहली चीज़ है कि आज तक किसी ने निकम्मा पिक्चर नहीं बनाया. It's such a common word. हर घर में एक निकम्मा होता है. निकम्मा एक शब्द नहीं, एक फीलिंग है. At some point in your life आप सबको किसी ना किसी ने निकम्मा बुलाया है. मतलब कोई और शब्द यूज कर दिया होगा, कोई और लैंग्वेज में, हर कोने में पूरी दुनिया में निकम्मा है. You know, and it's for me it was about a coming of age film for Adi. To realize कि हर निकम्मा की एक आपके लाइफ में इंसिडेंट होती है, और फिर आप समझते हो कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. आप लड़के से आदमी बन जाते हो, लड़की से औरत बन जाते हो. यू नो, दैट्स द डिफाइनिंग मोमेंट. एंड होपफुली ऐसा कुछ बुरा इवेंट नहीं होना चाहिए आप लोग के साथ में, बच्चों के साथ में, फॉर देम टू रियलाइज who they are, what their journey is, and what their purpose in life is. So Adi realizes this in this film, and that's Adi for you. और आदि निकम्मा है. तो एक चीज़ है मैंने जो मेरे खुद के लाइफ से ली, और आप सबके लाइफ में भी होगा. एक इंसान है आपके लाइफ में जो जब देखो सोते रहता है, पर जब आपको मिलता है बोलता है नींद पूरी नहीं हुई, है कि नहीं? So that I've tried and incorporated in Nikamma as the character, that उसे always सोने का मन करता है पर कभी नींद पूरी नहीं होती है. Your mom had said Nikamma बड़े काम का. Hello team Nikamma, I'm Bhavna from News 18, and congratulations for the movie. The trailer is already being appreciated. Shilpa ma'am, I just wanted to know that in trailer we see you making Abhimanyu doing household chores and everything. In real life, do you do so or not? With him? Not with him, but in real life, in your home. नहीं यार, देवर है नहीं मेरी जिंदगी में. मैं तो करवाती. And ma'am, in your recent video, we saw you congratulating Nusrat on her movie, and it was really nice to see you congratulate each other. What is your reaction on your movie clashing with her? It's not clashing. उनकी आज आ रही है और हमारी अगले हफ्ते आ रही है, और अगर आती भी तो फिर भी मैं I would have wished her the very best and complimented her, and there's enough place for everybody in the industry. अरे यार, a country of a billion people, सबको जाके थिएटरों में देखना चाहिए पिक्चरों को. फिल्में देखना चाहिए. हाँ. We'll take last 2 questions and then nobody wants to stay. Hello ma'am, this side. Akash from filmmedia.com. मैम मेरा सवाल आपसे है. I want to know who has been more mischievous on set or off set between Abhimanyu and Shirley. Abhimanyu and Shirley? Yes. No. Could you please tell me any anecdote or anything from? I'll say. Oh God. I'm going to say this. So You know. I know question change कर देते हैं. So my question was from Shilpa ma'am, who was more mischievous, Abhimanyu or Shirley? But guys, it's Shirley's debut, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग शर्ली के लिए कुछ क्वेश्चन पूछिए. You know, it's a very important time for her, and you know, we wish her all the best, and she's worked very, very hard from her journey from New Zealand coming here, getting a YouTube channel, becoming such an intense, amazing singer, and then you know, finding her passion and hard work in acting. So guys, can we have a round of applause for her? One.
Louder, louder. And can we ask her some questions, please? Yes, please. Hi. शिल्ले, आपको मतलब जैसे कि हम सब लोग जो है स्कूल टाइम से ही मतलब फॉलो करते आ रहे हैं, यू आर अ रॉक स्टार लाइक, तो आपके गाने सुनते हुए आ रहे हैं। आपकी एज क्या है? स्कूल टाइम से शिल्ले को हम जानते हैं। Started in जी जी जी, काफी टाइम से। 2013. Yep. तो कितनी बार फेल हुए आप? तो शिल्ले, मैं मतलब चाहूँगा आप अपनी आवाज़ में अगर एक कुछ सुरीला गाना गा दें, क्योंकि आप आवाज़ के लिए बहुत जाने ये जाते हैं। कितना गाना? ये बात की। Very good, very good. Line free. हैप्पी अगर मिस्टेक हो जाए तो प्लीज। इनसे तो अच्छा ही गाएंगे हम। मेरा तू मेरा मुझ में है सब कुछ तेरा, सांसें भी तेरी, बातें भी तेरी, तेरी वजह से है बदली जिंदगी, मैं तेरे बिन क्या कुछ भी नहीं, दिल है जहाँ तू धड़के वही, वाह हेलो मैम, दिस इज अनुष्का फ्रॉम हिंदुस्तान दर्पण। अरे हमको मत गाने बोलना। हेलो मैम, नहीं मैम, आजकल पूरे देश में निकम्मा बच्चों को बोला जा रहा है गेमिंग की वजह से, गेम्स खेल रहे हैं। अगर आप सुपर वुमन हैं तो आप क्या, आपके पास वो पावर होती, क्या आप करते बच्चों के लिए कि वो इस पूरे मेंटल स्ट्रेस से बाहर आ पाए? Gaming is a multi-billion-dollar industry, and I think it is growing into an amazing future. So I mean, obviously our generation, हम लोग phones के साथ पैदा नहीं हुए थे, पर आजकल की generation phones के साथ पैदा होती है, and I think that is the way forward. If they're being productive when they're playing these games, I don't think there's anything wrong with that. इसके बच्चे नहीं है, इसके बच्चे नहीं है ना, ये साबिर सर और मैं जवाब देंगे। No. माइक छीन लो इसके मुझसे, मैं बोलती हूँ। एग्जैक्टली, तो अभिमन्यु, ये तो लड़का है ना, तो मेरा बच्चा जब उससे मिलता है तो ये लोग फुटबॉल खेलते हैं। अभी रियान has become a big fan of Abhimanyu because he loves you know the way he does his action. और also मेरे घर पर ट्रैम्पोलिन है इसलिए। बट नो, जो आपने बात कही ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, और अगर आपके जरिए ये बात दूसरे पेरेंट्स तक पहुंच सकती है, बच्चों की गलती नहीं है, इट्स लेफ्ट टू द पेरेंट्स कि वो अपने बच्चों की परवरिश कैसे करना चाहते हैं। हमारे पास ये लग्जरी है कि हमारे पास मेड है या मम्मी के पास थोड़ा सा टाइम है, अभी मेरे साथ रहती है, तो मैं अभी वियान मेरी मम्मी के साथ है, पेंटिंग कर रहा है, और एक स्टिपुलेटेड टाइम का होना बहुत ज़रूरी है कि आप एक डिसिप्लिन मेंटेन करो घर पे। ये नहीं कि कभी भी चाहे तो आईपैड उठा के या फ़ोन उठा के वो यूट्यूब देख सकते हैं या गेम्स खेल सकते हैं। माई सन इज़ ओनली अलाउड अराउंड 2 hours ऑफ स्क्रीन टाइम, वो भी बिग स्क्रीन पे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उसके चश्मे लग जाए इस उम्र में। बट बिकॉज यूट्यूब इज़ नाउ कनेक्टेड टू द टेलीविजन, एंड अगर उसको गेम्स खेलना है तो इट विल हैव टू बी ओकेड बाय अस, और वो भी यूट्यूब पे भी एक रिस्ट्रिक्शन लगाना बहुत ज़रूरी है। यू हैव किड्स यूट्यूब नाउ, so they cannot access the other stuff that is going on. And मैं चाहती हूँ, और हम लोग एक्चुअली अभिमन्यु और मैं यही डिस्कस कर रहे थे कल, हम लोग जब प्रमोशंस कर रहे थे, कि बच्चों को ये इनकलकेट करना बहुत ज़रूरी है, किसी ना किसी स्पोर्ट्स में डालना, क्योंकि उसमें क्या है, वो एक माइंड को भी एक्टिव रखता है बॉडी के साथ साथ, एंड इट ऑल्सो क्रिएट्स हंगर, नहीं तो वो घर पे बैठे बैठे ना, उनको आजकल भूख ही नहीं लगती, यू नोटिस, एंड दे ईटिंग ऑल जंक एट द रॉन्ग टाइम्स। तो एक डिसिप्लिन को मेंटेन करना, तो मेरे घर में खाने का डिसिप्लिन, स्वीट का डिसिप्लिन, सिर्फ वीकेंड्स